کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے 125 ارب روپے مختلف بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے دیے۔ صوبائی حکومتیں موٹر سائیکلوں اور رکشہ مالکان کو رجسٹریشن ان کے اپنے نام کروانے کے لیے تمام سہولیات فراہم کریں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریوں کے ساتھ رابطے تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اور ناظرین، خلیج میں جنگی صورتحال کے باعث ملک میں گیس بحران سنگین ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ خواتین کہتے ہیں کہ بھاری بل تو باقاعدگی سے آ رہے ہیں، لیکن چائے تک پکانے کے لیے گیس میسر نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ خلیج میں جنگی صورتحال کے باعث ملک میں گیس بحران سنگین صورت اختیار کر گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات میں اضافہ ہو گیا۔ گھریلو صارفین کو بھی چند گھنٹوں کے لیے گیس فراہم کی جا رہی ہے اور شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ بھاری بل تو باقاعدگی سے آ رہے ہیں، مگر چائے تک پکانے کے لیے گیس میسر نہیں، مہنگے سلنڈر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ گیس نہیں آ رہی تو سلنڈرز کی گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ، اور آپ کو پتہ سلنڈر میں گیس کافی ضائع بھی ہوتی ہے، تو آپ بتائیے یہ وہ بھی بل آئیں گے اور یہ سلنڈر کے بل بھی ہم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کیسے حل کریں؟ سوئی ناردرن حکام کے مطابق صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی پلاننگ شروع کر دی، تاہم آئندہ ہفتے LNG سپلائی مزید کم ہونے کا خدشہ ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ اہم ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 100% کا ہوشربا اضافہ۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے جاں بلک مریضوں کا علاج معالجہ بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اینٹی بایوٹک، پین کلر، شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کی ادویات انتہائی مہنگی ہونے لگی ہیں، جبکہ اس حوالے سے عالمی حالات کی آڑ میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی لوٹ مار بھی تیز ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عالمی حالات کی آڑ میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی لوٹ مار تیز۔ کئی اہم ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 100% کا ہوش ربا اضافہ۔ ملک بھر میں اینٹی بایوٹک، پین کلر، شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کی ادویات انتہائی مہنگی ادویات کے باعث غریب مریض علاج ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات مہنگی ہونے سے ان کا استعمال کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کی اینٹی بایوٹک جو میڈیسن ہے ان کے ریٹ وغیرہ کافی انکریز ہوئے ہیں، جس سے کسٹمر وغیرہ کو بھی میڈیسن خریدنے میں مشکل ہے۔ میڈیسن بہت مہنگی ہو چکی ہے، عوام جو ہے نا بڑی مشکلات فیس کر رہی ہے۔ جو میڈیسن پہلے 400-500 کی ملتی تھی، اب اس کا ریٹ اتنا اپ ہوا ہے، وہ 1000-1200 کی مل رہی ہے۔ بہت مہنگی دوائیں ہیں، پیسے کچھ لے کے آئے آگے سے زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں تو پریشان ہی ہیں۔ غریب آدمی دوائیوں پہ لگا ہوا، دوائیں سستی نہیں ہو رہی، ان کو یہی دوائی سستی کرے۔ طبی ماہرین کے مطابق ادویات کے مختلف بیچز میں قیمتوں کا فرق ڈرگ پرائسنگ سسٹم پر سوالیہ نشان ہے، جس سے سنگین امراض میں مبتلا افراد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ادویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو ملک بھر میں علاج و معالجے کی دستیابی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ عالمی توانائی بحران کے ملک میں بڑھتے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ لاہور میں شارجہ سے گجمدہ تک چلنے والی میٹرو بس کے اوقات بھی محدود کر دیے گئے ہیں، جبکہ میٹرو بس اب روزانہ صبح 6 سے رات 9 بجے تک ہی چلے گی اور نیا بس شیڈول نافذ ہونے سے روزانہ آنے جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ توانائی بحران کے پیش نظر لاہور میں لاہور میٹرو بس سروس کے اوقات کار میں کمی کر دی گئی۔ میٹرو بس سروس نئے شیڈول کے مطابق اب روزانہ صبح 6 سے رات 9 بجے تک ہی چلے گی۔ رات 9 بجے کے بعد سروس مکمل طور پر بند رہے گی۔ مسافروں کو آخری بس پکڑنے کے لیے 8:30 بجے تک اسٹیشن پہنچنے کی ہدایت۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ نئے خط کار پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور یہ تبدیلی تحکم ثانی نافذ العمل رہے گی۔ دوسری جانب شہریوں نے میٹرو بس کے اوقات کار میں کمی کو موجودہ حالات میں ضروری قرار دیا۔ دیگر افراد کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے رات گئے کام سے واپس آنے والے لوگ متاثر ہوں گے۔ 10 بجے سے زیادہ اوپر جانا چاہیے ٹائم، کیونکہ جو لوگ کام جاب کرتے ہیں لبرٹی وغیرہ یہ ایم اے معلم پہ، یہ ایزیلی اپنے گھر کی طرف اسٹرگل کر سکے، تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہی کہ ٹائم کو بڑھایا جائے۔ 10 بجے تک ٹھیک تھا ٹائم، سب کو پتہ ہے 10 بجے بند ہو جاتی ہے، اب 9 بجے بند ہوگی تو پھر کیا عوام کرے گی؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ توانائی بچانے کے اقدامات ضروری ہیں، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کو مشکل مالی حالات کے پیش نظر سفری سہولیات کی بلا تعطل فراہمی بھی ضروری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ صحت مند
पंजाब की जानिब एक और कदम सामने आया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं ये प्रोग्राम दिल के मरीजों को मुफ्त और बरवक्त इलाज फराहम करने में मदद देगा। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। प्रोग्राम के तहत मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फराहमी। पंजाब के 9 सरकारी जबकि 15 निजी कार्डिक इदारों से चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रोग्राम के तहत PIC लाहौर में पहले मरीज की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के तहत अमराज़ कल्ब के लिए सालाना 3 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओपन हार्ट सर्जरी की तवील वेटिंग लिस्टें 6 माह में खत्म करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम की मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि दिल के हजारों मरीजों को जदीद सहूलियत की फराहमी के लिए कोशा है। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम मरीजों को मुफ्त और बर वक्त इलाज फराहम करने में मदद देगा। और नाज़रीन, लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डिलीवरी के ऑपरेशन की वीडियो बनाने का मामला है। डॉक्टर्स की संगीन गफलत पर महकमा सेहत की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को ख़त्म कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सजाद हुसैन। में डिलीवरी के ऑपरेशन की वीडियो बनाकर वायरल करने पर महकमा सेहत का सख्त एक्शन। मुजरिमाना गफलत, कोताही और SOPs की खिलाफ वर्जी पर अस्पताल के 5 डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फौरी खत्म कर दी गई। डॉक्टर तैयबा फातिमा तूर, डॉक्टर महम अमीन, डॉक्टर जैनब ताहिर, डॉक्टर आयशा अफजल और डॉक्टर आमिना के खिलाफ कार्रवाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल के तहत की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मजीद कार्रवाई के लिए मरासला PMDC और मुतलका इदारों को भिजवा दिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों को बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक मुस्तकबिल में भी गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल-हुकूमत में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम, आवाम परेशान। मार्केट में बैंगन 100 जबकि पालक 60, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं और फलों में से 550, पपीता 340, अमरूद 300, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम है, आवाम परेशान है। मार्केट में बैंगन 100, पालक 60 और आलू 40 रुपए फी किलो में बिक रहे हैं जबकि फलों में से 550, पपीता 340, अमरूद 300 और खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और आपको बताएं कि सरकारी रेट इस पर आमद न होने के बराबर है। आज भी फल और सब्जियों के महंगे दाम जो है वसूल किए जा रहे हैं जबकि मार्केट में बैंगन 100, पालक 60, आलू 40 रुपए फी किलो में बिक रहे हैं और फलों में से 550, पपीता 340, अमरूद 300 और खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारुल-हुकूमत में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम है, आवाम परेशान है। मार्केट में बैंगन 100 जबकि पालक 60 और आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में से 550, पपीता 340 और अमरूद 300 रुपए में बेचे जा रहे हैं जबकि खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और DC रेट इस पर आमद न होने के बराबर है। नाज़रीन, छुट्टी के रोज़ शहरों की बड़ी तादाद सहूलत बाजार हरबंसपुरा पहुँच गई जबकि सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कि सहूलत बाजार में अशिया मियारी और सस्ती मिल जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज हफ्ते भर की शॉपिंग। लाहौर के बासी पहुंचे सहूलत बाजार हरबंसपुरा जहां अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब हैं। बाजार में 10 किलो आटे के थैले का रेट 950 जबकि सहूलत बाजार में ये 900 रुपए में दस्तयाब है। 175 रुपए वाली चीनी सहूलत बाजार में 140 रुपए फी किलो मिल रही है। ब्रायलर गोश्त भी मार्केट में 591 रुपए जबकि सहूलत बाजारों में 584 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फर्क है, यहाँ अशिया भी सस्ती मिल जाती है। आलू जो है भाई 30-40 रुपए है, इधर 18 रुपए किलो है। प्याज जो है इधर 75 रुपए किलो है, 70-75 रुपए किलो है। बाइट जो है 120-100 रुपए किलो बेच रहे हैं। सब जगह पे घूम के जो है ना हम फिर इधर ही आके जो है ना ख़रीदारी करते हैं क्योंकि इधर हमें जो है ना मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। इधर हर चीज़ ना बहुत अच्छी है, बाहर की निस्बत इधर 15-20 रुपये रेट कम है, तो बाहर हर बंदे का अपनी मर्जी का अपना रेट है, इस वजह से ना इधर ये सहूलत बाज़ार सस्ता है। शहरी को कहना था सहूलत बाजारों में चीजों का म्यार भी आम मार्केटों से बेहतर है।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि दुश्मन इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाना चाहता है, लेकिन ये साजिश नाकाम होगी। उम्मीद है हज से पहले अमेरिका ईरान कशीदगी खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब ने सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया है। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। लाहौर में हज ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि उम्मीद है हज से पहले अमेरिका ईरान कशीदगी कम हो जाएगी। दुश्मन की कोशिश है कि जंग को इस्लामी ममालिक की जंग में तब्दील किया जाए। सऊदी अरब ने सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया। मोहम्मद बिन सलमान को अमन का दाई समझते हैं। दुश्मन ये चाहता है कि किसी तरह सऊदिया को खींचकर, अरब इस्लामी दुनिया को खींचकर ईरान की और अरबों की ये लड़ाई बनाए, शिया और सुन्नी की ये लड़ाई बनाए। हमें अपने मुल्क के अंदर भी मुत्तहिद रहना है। यहाँ भी मैं ये अर्ज करूँगा आपको, ये मेरा पैगाम लेकर जाएं, दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों के नतीजे में खित्ते में कशीदगी में कमी हुई। अफवाहों के बरक्स सऊदी वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं। मस्जिद अक्सा की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन उम्मत के इत्तेहाद से ही मसाइल का हल मुमकिन है। आपका जो सिपा सालार है, फील्ड मार्शल, दिन रात इस काम में लगा है कि अमन रहे मुसलमान मुल्कों के दरमियान। जंग करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, अमन कायम करना मुश्किल होता है। आपके दुश्मनों ने, अफवाह साजों ने, झूठ बोलने वालों ने, जैसे वो झूठ बोल रहे थे कि ईरानी वजीर खारजा नहीं आ रहे, आज सुबह सऊदी वजीर खारजा नहीं आ रहे, आज सुबह से अफवाह साज लगे हुए थे, कल ईरान के हवाले से अफवाह साजी कर रहे थे। आप जान लें कि इस वक्त अल्लाह ने आपके मुल्क को उम्मत की वहदत और इत्तेहाद का उसी तरह मरकज बनाया है जिस तरह मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा हमारा मरकज वो है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आजमीन हज को मनासिक हज और इमिग्रेशन से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की गई। कैमरामैन उमैर रईस के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नासिर सरकारी स्कूल्स को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। स्कूल्स के बिजली टैरिफ में तब्दीली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सरकारी तालीमी इदारों की माली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत का ये बड़ा फैसला मुतवक्के है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों को बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ का इम्कान है। स्कूलों के बिजली टैरिफ में तब्दीली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। कमर्शियल से घरेलू टैरिफ पर मुंतकली की तजवीज भी जेर गौर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत और महकमा तवानाई से राब्ता किया है। माली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला मुतवक्के है। सरकारी स्कूलों के बाद निजी तालीमी इदारे भी रिलीफ के मुंतजिर हैं। पंजाब में 38,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल मौजूद हैं। सूबा भर में 1 लाख के करीब निजी स्कूल भी फाल हैं। टैरिफ तब्दीली से तालीमी इदारों को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कमर्शियल से घरेलू टैरिफ पर मुंतकली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नासिम लाहौर रेस क्लब में डर्बी रेस के 8 दिलचस्प मुकाबले। गोरी ईडन क्वीन ने पहले मुकाबले में फतह अपने नाम की है, जबकि जुपिटर ने 5वें मुकाबले में रेस जीतकर 64 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने घुड़ दौड़ से भरपूर लुत्फ उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेस क्लब में घुड़दौड़ के दीवानों के लिए डर्बी रेस का इनेकाद किया गया। रेस देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर रेस क्लब पहुंची। पहले मुकाबले में ईडन क्वीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। 5वें अहम मुकाबले में मशहूर घोड़ी जुपिटर ने रेस जीतकर 64 लाख रुपए का इनाम और शायकीन से जबरदस्त दाद वसूल की। इस मौके पर जोकी का कहना था कि बारिश के बायस ट्रैक कदरे मुश्किल हो जाने के बावजूद तमाम मुकाबले इंतहाई दिलचस्प रहे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया घोड़े ने, जो मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा मुझे घोड़े ने माशाल्लाह रिस्पॉन्स किया है और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। बहुत अच्छा इवेंट था। दूसरी जानिब फातेह घोड़ी जुपिटर के मालिक ने कहा कि इस कामयाबी के पीछे मुसलसल मेहनत और बेहतरीन ट्रेनिंग का अमल शामिल है। अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने अच्छे टाइटल से मुझे मेरी फील्ड में नवाजा है। मेरी वालदा की दुआएं, चाहने वालों की दुआएं हैं, हम सब की मेहनत है। अल्लाह पाक ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी है कि एक ट्रेनर ओनर हमारा एक टीम वर्क था कि उसकी बिना पे अल्लाह पाक ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर रेस क्लब में होने वाली ये डर्बी रेस देखने के लिए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और अली तरीन भी मौजूद थे। नाज़रीन, सीटीडी पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर मुश्तमिल ऑपरेशन में 36 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ हरास फैलाना चाहते थे।
दहशत गर्द किन किन इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं, जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पंजाब में दहशत गर्दी के खदशात। CTD पंजाब के एक माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 366 ऑपरेशन, 36 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक खतरनाक दहशत गर्दों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई लाहौर, कसूर, जहलम, चकवाल, उकाड़ा, खानेवाल, रावलपिंडी, चिन्नौर, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, सियालकोट, झंग, अटक और साहिवाल में की गई। दहशत गर्दों की शनाख्त निसार अहमद, बाचा खान, अनस, खिजर, गजनफर, सब्ज अली, सरदार खान और फैज वगैरह के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फैसलाबाद और जहलम से फितनल खवारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दों से 5 IED बम, 34 डेटोनेटर, 61 फुट हिफाजती फ्यूज वायर और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से नामालूम मकाम पर मजीद तफ्तीश जारी है। एक माह के दौरान 7,799 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,261 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक मतनासिब बयानात सामने आए हैं। लाहौर में FPCCI रहनुमाओं की शदीद मसम्मत। GSP प्लस स्टेटस को मुल्की मैशत की इशारा करार दे दिया। FPCC रहनुमाओं का इस मुताबिक कह रहे हैं कि GSP प्लस स्टेटस के तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल हो रहा है। इस स्टेटस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। लाहौर में FPCCI रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज का कहना था कि GSP प्लस पाकिस्तानी बरामदात की बुनियाद है। अगर ये स्टेटस खत्म हुआ तो 10 से 12% ड्यूटी आयद हो जाएगी। रियासत के खिलाफ मुआशी हथियार इस्तेमाल करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। हमारी कुल आलमी बरामदात का तकरीबन 25 से 30% इस खत्ते से वाबस्ता है। अगर खुदा न खास्ता ये स्टेटस ख़त्म हुआ तो हमारी मसनूआत पर फौरी तौर पर 10 से 12% ड्यूटी आयद हो जाएगी, जिससे मुल्क को सालाना 8 से 9 अरब डॉलर का बराह रास्त नुकसान होगा। FPCCI ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं 2014 में मिलने वाला GSP प्लस स्टेटस 2027 तक जारी है। इसके तहत 27 प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान का अमल दरामद भारत और बांग्लादेश से बेहतर है। 2014 में हमारे मुल्क को ये GSP प्लस का स्टेटस मिला 2027 तक। इसमें डिफरेंट किस्म के इनके 27 किस्म के डिफरेंट कन्वेंशंस है जिसको आपने पूरा करना होता है। 2014 में जो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट थी EU कंट्रीज को वो 2.5 बिलियन डॉलर की थी। 2014 से लेके आज तक हम 8.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे आ चुके हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा कि GSP प्लस प्रोग्राम से बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दीगर रहनुमाओं समेत अली इमरान और अली हसाम ने भी मुतनाज़े बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि GSP प्लस स्टेटस का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दाम का असर। साल 2025 के दौरान सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता बरस माहौलियात की आलूदगी फैलाने पर हज़ारों यूनिट सील और मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। पंजाब हुकूमत के माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बरवक्त इकदाम का असर। आलमी अदारे IQ एयर के मुताबिक साल 2025 के दौरान सूबे में फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी रिकॉर्ड। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक गुज़श्ता बरस 81,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन की गई। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर हज़ारों यूनिट सील और मुकदमा दर्ज कर दिए गए। लाहौर के 47,000 किलोमीटर एरिया में एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आई। पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने के वाक़यात रोकने के लिए 67 क्विक रिस्पॉन्स वाटर बाउजर यूनिट्स मुतहरिक रहे। ईंटों के भट्टे जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल इंडस्ट्रियल यूनिट पर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की तनसीब करवाई गई। सूबे में पहली बार गाड़ियों के एमिशन टेस्टिंग और ग्रीन स्टिकर्स के इजरा से भी आलूदगी में वाज़ेह कमी हुई। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख का कहना है कि सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर निगरानी माहौलियाती बेहतरी का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। पिछले साल की निस्बत
पंजाब की जो एयर पोल्यूशन है उसमें 33% से ज़्यादा जो है वो कमी हुई है। और ये एक साल के अंदर एक, मैं समझता हूँ, एक रिकॉर्ड लेवल है कि किसी एक सूबे ने 33% तकरीबन जो है 33.5% अराउंड वो पोल्यूशन लेवल्स के अंदर जो है वो कमी की है। मौसम सरमा गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का अयादा किया। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबा भर में वरासती जायदादों की तकसीम इल्तवा का शिकार है। लाहौर के 365 मुज़ज्जात में 100 से ज़ायद पटवारियों की असामियाँ खाली पड़ी हैं, जबकि खुली कचहरियों का सिलसिला तातुल का शिकार। हज़ारों वकील रुल गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को खाली असामियों की मालूमात फ्राहम करने का खत लिख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर में काबसीन की दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला रुक गया। वरासती जायदादों की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर समेत सूबा भर के मकीनों की जमा बंदियाँ, रजिस्ट्रियों की पड़ताल का अमल भी सुस्त पड़ गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू रिफॉर्म